میں ایک تھانے میں انسپیکٹر تھا۔ ایک عورت کا شوہر اغوا ہوا تو اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ عورت روز تھانے آ جاتی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ میں نے پورا شہر چھان مارا مگر اس کے شوہر کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ اگر اس عورت کا شوہر نہ ملا تو یہ میری نوکری ختم کروا دے گی۔ ایک رات تنگ آ کر میں اس عورت کے گھر چلا گیا مگر یہ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ وہ عورت تو میرا نام ارشد ہے۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی جب میں تھانہ شکارپور میں سب انسپیکٹر کے طور پر تعینات ہوا تھا۔ مجھے اس تھانے کا ماحول دیکھ کر بڑی پریشانی ہوئی۔ اس تھانے میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، کوئی کسی کی بات نہ سنتا۔ حوالدار سے لے کر ایس پی تک کے عہدے پر بیٹھے لوگ جب تک لوگوں سے رشوت نہ لیتے کوئی کام نہ کرتے۔ لیکن میرے اندر ایک الگ ہی جذبہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں عوام کی خدمت کروں، ان کی شکایتیں سنوں اور ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کروں۔ میں کسی سے رشوت نہیں لیتا تھا۔ انسپیکٹر عنایت اللہ بھی میری سعادت سے خوش تھے۔ دراصل وہ خود بھی ایک خدا ترس انسان تھے۔ اس تھانے میں وہ واحد انسان تھے جنہیں میں لوگوں کا ہمدرد سمجھتا تھا۔ میں اکثر انہی کے ساتھ رہتا۔ ویسے بھی سب انسپیکٹر ہونے کے ناطے میری ڈیوٹی زیادہ تر انہی کے ساتھ لگا کرتی تھی۔ ایک دن صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ ہم صبح کی چائے پی رہے تھے کہ باہر سے کسی عورت کے رونے کی آواز اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے باہر مڑ کر دیکھا تو ایک عورت اپنا سینہ پیٹتی ہوئی اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حوالدار اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ یہ وقت شکایتوں کا نہیں ہے۔ تب انسپیکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جا کر اس عورت کو اندر بلا کر لاؤ۔ میں نے عورت کو اندر آنے کا کہا، تب اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ ہمارے سامنے ہانپتی کانپتی آ کر بیٹھ گئی۔ اس عورت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اس کا لہجہ انتہائی غمگین تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ حالت واقعی پریشان کن تھی۔ میں نے کہا، بی بی کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، میری نئی شادی ہوئی تھی لیکن میرا شوہر 1 مہینے سے گھر نہیں آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے انسپیکٹر صاحب، کہیں میرے شوہر کو کچھ ہو ہی نہ گیا ہو۔ اس کے دشمن بھی بڑے تھے، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے اسے اغوا کیا ہے یا پھر خدا نہ خواستہ۔ اتنا کہہ کر عورت چپ ہو گئی۔ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی بڑا پریشان ہوا تھا۔ انسپیکٹر صاحب نے مجھے اشارہ کیا۔ عورت جب رو رو کر ہلکان ہو گئی اور انسپیکٹر صاحب نے کوئی ہمدردی نہ دکھائی تو وہ بڑی پریشان اور حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ انسپیکٹر صاحب نے سر سے پاؤں تک اس عورت کا جائزہ لیا اور بولے، ٹھیک ہے بی بی، ہم آپ کی رپورٹ درج کر لیتے ہیں اور پھر اپنی تفتیش مکمل کر کے آپ کو تھانے بلائیں گے۔ باقی سوال جواب بعد میں کریں گے، فی الحال آپ گھر جائیں۔ انسپیکٹر صاحب کے کہنے کے باوجود عورت پھر سینہ پیٹنے لگی۔ آپ نہیں جانتے جی میں کتنی پریشان ہوں۔ آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، ورنہ میں اوپر تک جاؤں گی، سب کو کہوں گی کہ پولیس والے میری کوئی مدد نہیں کرتے۔ خیر بڑی مشکل سے ہم نے اسے تھانے سے باہر نکالا۔ اس کے جانے کے بعد انسپیکٹر صاحب کہنے لگے کہ اس عورت پر خاص دھیان رکھنا ہے، یہ عورت بڑی چلاک لگتی ہے، اس کا شوہر نہ ملا تو یہ ہماری شکایت بھی لگا سکتی ہے، میں اس کیس کو خود دیکھوں گا۔ پھر انسپیکٹر صاحب کہنے لگے، آج شام کو ہم اس عورت کو اطلاع دیے بغیر ہی اس کے گھر چلیں گے، تم اس کے بارے میں پتہ لگواؤ کہ یہ کس محلے سے آئی ہے۔ میں نے باہر کھڑے حوالدار سے عورت کا پیچھا کرنے کا کہا۔ اس حوالدار نے بتایا کہ وہ عورت فاروق مسجد والی گلی میں رہتی ہے، مکان نمبر بھی پتہ تھا۔ پتہ چلا کہ واقعی اس کی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی حلیے سے لگ رہا تھا کہ برسوں کی بیمار ہو۔ خیر شام کے وقت انسپیکٹر عنایت اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا، کہنے لگے تیار ہو جاؤ، اس بی بی کے گھر جانا ہے۔ پولیس کی وردی میں ہم اس عورت کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آس پاس کے لوگ آ کر ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہمیں لگا کہ نہ جانے ہم کس مقصد سے آئے ہیں۔ تب میں نے اس عورت کے پڑوسی سے پوچھا کہ آپ اس عورت کو جانتے ہو، یہ کون ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ بزرگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ خدا کی پناہ بیٹا، یہ میاں بیوی تو سارا دن اور ساری رات لڑتے رہتے ہیں، خدا پوچھے ان کو، انہوں نے تو پورے محلے کا سکون برباد کیا ہوا ہے۔ مگر اس عورت نے تو رپورٹ درج کروائی ہے کہ اس کا شوہر اغوا ہو گیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس یہی پتا ہے کہ اس عورت اور اس کے شوہر نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے۔
दिन रात इनकी आवाजें आती रहती हैं। इन्होंने मोहल्ले का सुकून बर्बाद किया है, मगर मजाल है जे किसी की बात सुन ले। बुजुर्ग तो ये कहकर चले गए, लेकिन मेरे पास सोचने की एक और वजह आ गई। इतने में औरत ने दरवाजा खोला। बदस्तूर इसकी आंखें सूजी हुई थी और वो रो रही थी। हमने इसे सलाम किया और घर के अंदर आ गए। घर आकर इंस्पेक्टर साहब ने इस घर का पूरा जायजा लिया। औरत भी चोर निगाहों से हमें देखती रही, जैसे इसे किसी बात के पता चल जाने का खौफ महसूस हो रहा हो। कहने लगी, आपको यहाँ क्या मिलेगा? मेरा शोर गुम हो चुका है, आप इसे ढूंढते क्यों नहीं, और मेरे घर में क्या लेने आए हैं? इंस्पेक्टर ने घूर कर औरत को देखा तो वो चुप हो गई, लेकिन अब मुझे इसका लहजा बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो हमारी परेशानी भूलकर इसे हमारे घर आने की फिक्र लग गई है। वो बार बार हमें घर से जाने का कह रही थी। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब ने गर्ज कर कहा, बीबी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर चली जाएं, हमें अपना काम करने दें। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनते ही औरत के जैसे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्यों जी, बाहर क्यों जाऊं? मैं क्या चोर हूं? अपने ही घर से बाहर चली जाऊं? इंस्पेक्टर साहब ने कहा, बीबी आपको थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं और बाहर चली जाएं, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है। इंस्पेक्टर अनायतुल्लाह ने गहरी नजरों से कहा तो वो औरत घबरा गई। नहीं इंस्पेक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, घर के 100 मामलात होते हैं, मैं घर आपके हवाले कैसे कर दूं? अच्छा ठीक है, इंस्पेक्टर अनायतुल्लाह ने कहा और मुझे लिए घर से बाहर आ गए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब ये क्या किया आपने? औरत के कहने में आ गए, अच्छा था कि हम घर की तलाशी ले लेते, आखिर वो तलाशी देने से चचा क्यों रही थी? वो कहने लगे, तुम नहीं समझते, मैं इस औरत को आजमा रहा था। इसके रवैये से पता चल गया है कि इसे परेशानी इस बात की है कि हमें सच ना पता चल जाए। अगर ये परेशान होती तो परेशानी में इंसान इतनी बातें नहीं सोचता कि घर खुला पड़ा है या फिर घर किसी के हवाले कर दिया जाए। अब तुम सब्र करो और देखो कि मैं इस औरत का क्या हश्र करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने कहा तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या करना चाहते हैं। खैर अगले 1-2 दिन खामोशी छाई रही। औरत भी गालबन ये सोचकर चुप हो गई होगी कि शोहर की तफ्तीश करने में इसी का सच खुल जाएगा, इसलिए इसने दोबारा राब्ता नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब की नज़रों में तो वो आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम अपने कपड़े बदलो, हम भेस बदल कर इस औरत के घर जाएंगे, देखेंगे कि अब वो क्या करती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी वर्दी उतारी और शलवार कमीज पहनकर आ गया। इंस्पेक्टर अनायतुल्लाह भी कुर्ता शलवार पहने थे। हम दोनों फारूक मस्जिद वाली गली की तरफ रवाना हो गए। वहां जाकर देखा तो अभी तक लोग नहीं जागे थे, हर तरफ खामोशी का राज था। इंस्पेक्टर अनायतुल्लाह ने मुझे घर के बाहर ही रुकने का कहा और खुद इस औरत के दरवाजे के आसपास दीवारों का जायजा लेने लगे। मैं देख रहा था कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। कुछ समझ ना आ रहा था कि अचानक इनकी नजर एक चूंटी पर पड़ी। इंस्पेक्टर साहब चौंक गए और कहने लगे, जाओ जाकर थाने से नफरी ले आओ, लेडीज पुलिस की, और पुलिस मोबाइल भी बुलाओ, इस औरत को गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन सर अभी तो इस औरत पर कोई जुर्म साबित भी नहीं हुआ, फिर हम इसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? मैंने मारे तजस्सुस के पूछा, जितना कहा है इतना करो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम्हें बाद में बताऊंगा, और ये बात तुम्हें पुलिस में सारी जिंदगी काम आएगी। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे थाने जाने का कहा। मैं जल्दी से थाने पहुंचा, पुलिस मंगवाई, मोबाइल मंगवाई और कुछ लेडीज पुलिस को लेकर वापस फारूक मस्जिद वाली गली की तरफ चला गया। पुलिस की गाड़ी देखकर लोग अपने घरों से निकल आए थे, औरत के घर के बाहर जमा हो गए, गोया ये इसका तमाशा देखने आए थे। इंस्पेक्टर साहब ने औरत के आंसुओं की परवाह न करते हुए लेडीज पुलिस को हुक्म दिया कि औरत को गिरफ्तार करके पुलिस मोबाइल में बिठाया जाए। औरत पहले मजामत करती रही, फिर रोने लगी, बोली कि मेरा शोहर गुम हो गया है, तुम लोग मुझे भी गिरफ्तार करके ले जा रहे हो, बजाय मेरी मदद करने के। इंस्पेक्टर साहब ने इसकी एक ना सुनी, औरत को पुलिस मोबाइल में बिठा दिया गया। थाने पहुंचकर मैं बेचैन था कि कब इंस्पेक्टर साहब इस औरत के केस के हकाइक से पर्दा उठाते हैं, लेकिन इसकी नौबत ना आई। लेडीज पुलिस ने इस औरत की दुर्गत बनाना शुरू कर दी। इस पर बुरी तरह से तशद्दुद किया गया, यहाँ तक कि वो अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो गई। इसने खुद ही कह दिया कि मैंने खुद ही अपने शोहर को कत्ल किया है, और वो एक एक लफ्ज सच बताएगी। भला आखिर इसकी कहानी इसने अपनी जुबानी
खुद सुनाई। हम दो बहनें थी। मेरा नाम मारिया और मेरी बड़ी बहन का नाम सारिया था। सारिया की शादी 3 साल पहले हो गई थी। इन दिनों मैं 16 साल की थी जब सारिया दुल्हन बनकर घर से जा रही थी। इसके जाने के बाद मैं घर में तन्हाई महसूस करने लगी। अम्मा अक्सर बीमार घर में पड़ी रहती और अब्बा दुकान पर होते। बहन भाई कोई ना था। अकेले में मेरा जी घबराता था। मेरी उम्र में अभी भी बचपना बाकी था। तब मैं अक्सर अपनी बहन को फोन करके कहती कि तुम हमारे घर आ जाओ, मगर इसका अपना घर था। वो कब तक हमारे साथ रहती। हफ्ते में 1-2 बार आ जाती। एक दिन सारिया आई तो कहने लगी कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन वहां रहोगी तो तुम्हारी तबीयत भी संभल जाएगी, दिल बहल जाएगा। सारिया की बात सही थी। मुझे तो इसका घर वैसे भी बड़ा अच्छा लगता था। वो और इनके शोर साजिद भाई अकेले रहते थे। घर में किसी किस्म का शोर शराबा ना होता था। वहां जाकर मैं बाजी से खूब गपशप भी कर सकती थी। खुदा की करनी कि जिस दिन मैं बाजी के घर गई, इसी दिन इनकी तबीयत खराब हो गई। वो तो खुद बिस्तर से जा लगी। मुझे बड़ी परेशानी हुई। ऐसे में साजिद भाई ने उनका बहुत ख्याल रखा। वो हर चीज टाइम पर लाते और कहते कि अपनी बाजी को बनाकर खिलाओ, मैं इन्हें बीमार नहीं देख सकता। एक दिन रात का वक्त था जब बाजी के पास बैठी बातें कर रही थी कि इन्हें नींद आ गई। मैं सोचने लगी कि अपने कमरे में जाकर सो जाऊं या यहीं रह जाऊं। फिर सोचा कि जहां रहना मुनासिब नहीं है। साजिद भाई क्या सोचेंगे। कि मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा बाहर साजिद भाई खड़े हैं। साजिद भाई को देखकर मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि इनकी नजरें आज बदली हुई लग रही थी। मैंने इनसे कोई बात ना की और तेजी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में मुझे बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बाहर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरा तो दिल कांप गया था। मैंने उठकर देखा तो बाहर साजिद भाई खड़े थे। अच्छा नहीं लगता था कि वो बाहर खड़े रहे। तब मैंने कहा, साजिद भाई क्या बात है, आपको मुझसे कुछ कहना है क्या? वो बोले, हाँ, तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो साजिद भाई ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। इनकी ये हरकत देखकर मैं तो परेशान हो गई कि कोई बहनोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने कहा कि साजिद भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हैं और आप ही बीमार हैं। मैं यहाँ इनकी जिम्मेदारी के लिए आई हूँ। मगर साजिद भाई पर तो कोई और ही भूत सवार था। वो मुझसे लड़ने लगे और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। तब मैंने इनके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा और जोर से दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली आई। साजिद भाई का तो गुस्से से बुरा हाल था। वो अपने कमरे में चले गए। बाजी बेचारी दवाइयों के असर में थी, इसे शायद इस शोर शराबे को सुनने की हिम्मत न थी। सुबह उठकर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ एक पल नहीं रहना चाहिए, फौरन घर चले जाना चाहिए। मगर मेरी बहन की हालत मजीद खराब हो गई। सुबह सुबह बहनोई ने इन्हें गर्म दूध का गिलास भी दिया था, मगर इसके बावजूद इनकी खांसी और बुखार में कमी ना हो रही थी। इन्हें देखकर मेरा कलेजा कटने लगा था। शाम को साजिद भाई बाजी के लिए दवाई लेकर आए। मैंने इन्हें दवाइयाँ खिलाई और अपने कमरे में जाने लगी। बाजी को भी नींद आ रही थी। तब साजिद भाई ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। कहने लगे, मैं तो तुम्हें शुरू दिन से ही पसंद करता हूँ। तुम्हारी बहन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप से मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो कहने लगे कि पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, इसके बाद ही हम छोटी की शादी करेंगे। मगर तुम मुझे शुरू से पसंद थी। साजिद भाई के मुंह से ऐसी अल्फाज सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैं कुछ न बोली कि मेरी बहन बीमार थी। अगले दिन मेरी बहन की हालत मजीद बिगड़ गई, यहाँ तक कि इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि बाजी ने शदीद सदमा लिया है। इसी सदमे के कारण वो बीमार पड़ गई हैं। बुखार परेशानी की वजह से था और फालिज के भी चांस थे, जबकि बाजी को शदीद किस्म का हैजा भी था। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। अम्मी अबू भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन इसी शाम बाजी हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस खबर ने तो जैसे मेरे सर पर सातों आसमां गिरा दिए थे। इस दिन मैं दहाड़े मार मार कर रोई थी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बाजी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। मैंने सोचा अब साजिद भाई जैसे इंसान को कभी भी मुंह नहीं लगाऊंगी। लेकिन जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। जिंदगी इंसान को ऐसे ऐसे मोड़ पे ले आती है जिसका इंसान ने सोचा भी नहीं होता। एक शाम अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने साजिद भाई खड़े थे।
मैं इन्हें देखते ही डर गई। कहने लगे कि मैं तुमसे एक बात करूंगा और फिर चला जाऊंगा। इसके बाद मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मैं समझ गई कि घटिया आदमी ने मुझसे क्या बात करनी है, मगर फिर भी मैंने सब्र का दामन थामे रखा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। तब साजिद भाई ने बड़े ही ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे ना की तो अच्छा नहीं होगा। पहले भी तुम्हारा रिश्ता ना देने का अंजाम तुम्हारे सामने है, यानी तुम्हारी बाजी की मौत। और अब अगर इनकार करोगी तो सोचो क्या क्या हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि साजिद भाई इस कदर भी गिर सकते हैं। न जाने इनकी इस बात का क्या मतलब था, मगर मैं तो इनका लहजा देखकर डर गई। मैंने इनसे कुछ ना कहा, बल्कि अब मेरे पास खोने को कुछ ना बचा। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई थी, अब मुझे साजिद से कोई डर नहीं था। अगले 1-2 दिन में इसने मेरा जवाब मालूम करने की कोशिश की, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुमसे शादी करनी है। तुमने जो करना है कर लो। मेरी बात का साजिद पर कोई असर ना हुआ। इसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता तलब किया और न जाने इन्हें क्या बात की कि अम्मी अब्बू ने मेरी रजामंदी के खिलाफ ही मुझे साजिद के पल्ले बांध दिया। ये बात मेरे लिए बहुत ही अजियतनाक थी, मगर मैं क्या करती। साजिद जैसे घटिया इंसान का साथ अब मेरी किस्मत में लिखा गया था। शादी के बाद साजिद का रवैया मुझसे बहुत बुरा था। वो मुझसे हंसकर बात तक न करता, हर वक्त मुझे ताने देता और शक करता। वो एक नफसियाती किस्म का आदमी था। तब मैंने एक दिन इससे निजात हासिल करने की सोची, क्योंकि इसने मेरी बहन की जान भी ली थी और ये बात इसने खुद अपने मुंह से बोली थी। इस दिन जब इसने ये कहा था कि वो मेरी बहन को भी इनकार करने की सजा दे चुका है, तब मेरा खून खोल उठा था। मैं बर्दाश्त न कर सकी और मैंने इसकी जान लेने का सोच लिया था और फिर अपने मंसूबे पर अमल करके पहले ही इसे मारा और फिर इसे इस घर के सैन में ही दफना दिया। ये कहकर नफरत से इसने फर्श पर थूक दिया था। सारा नायतुल्लाह ने इस औरत को अंदर ले जाने का हुक्म दिया और फिर बैठकर इसकी फाइल बनाने लगे। मैंने कहा, सर मैं एक बात सोच रहा हूँ, आखिर आपको कैसे पता चला कि ये औरत ही अपने शोहर की कातिल है? कहने लगे, मैंने सारी उम्र इसी शोबे में गुजारी है। मैं जानता हूँ कि किसी इंसान के बात करने का मतलब और अंदाज क्या होता है। मैं बिना बताए इस दिन इस औरत के घर गया और अपने लहजे में इस औरत से बात की और इसे जैसे एक मुजरम घबरा जाता है। लेकिन फिर मैं इसलिए चुप रहा कि अभी तक कोई सबूत मेरे हाथ ना लगा था। सच पूछो तो मैं हिम्मत हारने लगा था, क्योंकि कोई सिरा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जिस दिन मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ इस औरत के घर गया था, तुम्हें याद होगा कि मैंने दीवार पर एक चूंटी देखी थी और तुम्हें इस औरत को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये खास किस्म की चूंटी थी जो सिर्फ वहां पाई जाती है जहां कहीं इंसानी लाश दफन हो, और ऐसी चूंटियां कब्रिस्तान में पाई जाती हैं। एक बार मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ था। वहां पर मैंने गहरे तरीके से कब्रिस्तान के माहौल का जायजा लिया, तो मुझे ये भी मालूम हुआ कि कब्रिस्तान के पास जो चींटी मौजूद होती है वो दूसरी चींटियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसलिए जब मैंने कब्रिस्तान वाली चींटी इस औरत के घर की दीवार पर देखी तो मैं समझ गया कि यहाँ आसपास ही कहीं मुर्दा दफन है। और वाकई ऐसा ही हुआ था। इस औरत की जगह बिताने पर सहन को खोदा गया था और वहां से इसकी शोहर की लाश निकाली गई। इसके बाद इस औरत को कानूनी सजा दी गई, क्योंकि इंसान के साथ जितना बड़ा भी जुल्म क्यों ना हो जाए, असूल यही है कि कानून को हाथ में ना लिया जाए। ये मेरा थाने में पहला केस था, इसलिए मुझे वो औरत नहीं भूलती। कभी कभी सोचता हूँ कि गलती किसकी थी, इस औरत की या इसके माँ बाप की, या इसकी अपनी, या फिर इसकी बहन की, या फिर इस माशरे की जो नाजुक रिश्तों के दरमियान कोई पहचान ही नहीं रखते। साली, आधी घर वाली, इस जैसे घटिया अल्फाजों ने हमारे दिमागों में से रिश्तों की पाकीज़गी ख़त्म कर दी है। आखिर में इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जवाब भी ज़रूर दीजिएगा।